think you have to be an actor or a part of a film crew or have something to do with filmmaking to be able to appreciate what we went through during the making of this film. It was an experience. Sync Sound, was it the first time you worked Yeah, with? no, not the first time. Sync Sound is one of them. But Sync Sound is not something novel. It's been there for time immemorial. It's just that in the recent past we haven't done that. But just little things like leaving an actor or giving an actor his space and his time and his moments on the sets, to be only concentrating on how he's going to perform and not be worried about his dress or his look or his continuity, not be worried about noise on the streets or people walking behind the camera. I think these are very small things that only actors will appreciate. But that happened with us, and therefore we're very appreciative of this. These are little moments, and for me, who has been in this industry for so many years and experienced all different methodologies and kinds of people, all very unique, but I feel that this is the first time that I felt that a lot of care is being given to every individual, whether it's a cameraman, whether it's the boom man, whether it's a continuity person, whether it's the dress man. They all have their importance, and that's been given to them. So, Hindi cinemas evolved over the years. How much do you feel that you've contributed to the evolution of Hindi cinema, primarily because today scripts are being written for you? I don't think this is entirely correct, and I don't think that there's been any major contribution from my side. I'm just another actor that has had the good fortune of being around and being offered roles, and I feel very honored and very happy that I have an opportunity to work with this modern generation, which has got so much energy and so much desire to excel. Just to be a part of that unit is wonderful. Thank you so much. सूत्री फिल्म जो आप पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं। एक ऐसी कहानी है जो एक आम आदमी उसको अच्छी तरह समझ सकता है। उसमें बहुत ही एक डिग्निटी है, ग्रेस है, एंड और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फिल्म किसी इंटरनेशनल फिल्म से कम आपको नज़र नहीं आएगी। उसकी मेकिंग, उसकी टेकिंग, उसकी लुक, उसकी परफॉर्मेंसेस, दे आर वेरी सेंसिबल एंड वेरी रियल एंड नथिंग विच इज़, ऐसा लगेगा नहीं आपको उस फिल्म में एक आर्टिफिशियल मोमेंट नज़र नहीं आएगा मेरे हिसाब से। आई माइट बी रॉन्ग। I play this girl called Sonia Kapoor. She's the daughter of Mr. Gulshan Kapoor, who's obviously Mr. Ranbir Kapoor, and he's the 10th richest man. दुनिया के बहुत अमीर आदमी है, तो obviously अमीरी जब होते हैं आप तो there's a certain arrogance आप में आती है. So she is a bit arrogant. She's very, जो उसको चाहिए उसको चाहिए. पर अभी मैं ये बोल रही हूँ तो आप ये मत सोचना कि वो एकदम फिल्मी काइंड ऑफ एरोगेंस है. It's a different character. I think it's very different. It's been played differently, so that's about it. के साथ आपकी पहली फिल्म भी आई थी, क्या कहना? She is directing this. देखिए किस्मत होती है. We were supposed to do क्या कहना first, where she was supposed to direct it, and then it didn't happen. तो उन्होंने सिर्फ कहानी लिखी, तो वो फिल्म तो बहुत अच्छी चली. तो अभी अरमान आ रही है जिसमें इन्होंने कहानी लिखी है और डायरेक्ट भी किया है. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. शी इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, और वो यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, नहीं तो वो अगली फिल्म तो नहीं मिलने वाली. No, she was great to work with. She's a very good director, very sensitive. I think there's a certain sensitivity जो कि women have. I'm not saying men don't have, but women have that extra bit of sensitivity, which has really helped this film, because there's a lot of drama in this film, and to handle a subject like this, I think she was perfect, and it was a great experience. Here is the only part where I don't like Hani Aunty so much, because she has not given me one dialogue with Mr. Bachchan. तो मैं कुछ नहीं बोल सकती. मैं एक ही जगह हम दोनों फ्रेम में हैं, लेकिन मैं बेहोश पड़ी हुई हूँ और वो बात कर रहे हैं. तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ फिल्म वेयर आई कैन हैव अ डायलॉग विद हिम समवेयर और द अदर. नहीं तो मुझे लगता है उनकी फिल्म में मुझे एक एक्स्ट्रा का रोल करना पड़ेगा और आके बोलना पड़ेगा, ऑटोग्राफ प्लीज़. अब तक जो आपने रोल्स किए हैं वो सब स्वीट बबली गर्ल के किए हैं. इस रोल में थोड़े से नेगेटिव शेड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग? देखिए ये तो बोलने की बात होती है कि आपने अभी तक स्वीट बबली किए हैं. आई डोंट थिंक ऑल माई कैरेक्टर्स हैव बीन स्वीट एंड बबली. एंड दूसरी बात ये कि हर इंसान में नेगेटिव कैरेक्टर्स के शेड्स होते हैं एज वेल एज पॉजिटिव.
ये होता था कि पहली फिल्मों में ऐसा होता था कि जो पॉजिटिव है वो स्ट्रेट हीरोइन एकदम सती सावित्री स्ट्रेट, जो नेगेटिव है वो वैम्प है. सो देयर वाज नेवर अ ग्रे एरिया इन फिल्म्स. बट आई थिंक आजकल फिल्में इतनी बदल गई है, ऑडियंस खुद बोलती है कि हमको अलग फिल्म चाहिए, हमको ऐसी फिल्म नहीं चाहिए कि जो एक सीन देख के आप पूरी फिल्म की स्टोरी बता दो. So I think Sonia is a very very real girl, and yes, she has her good sides and she has the bad sides. But I'm sure all you guys have your bad sides. Me as Preeti Zinta, I have certain things that are not good about me. कोई चीज़ें मेरे बारे में अच्छी है. So it's like that. ऐसे नहीं है कि Sonia is all black और Sonia एकदम ही ख़राब लड़की है. She's a very sweet girl. बट जो उसको चाहिए एंड उसके इफ़ यू आर यूज्ड टू ज़िंदगी में, अगर आपको जो चीज़ चाहिए आपको हमेशा मिल जाती है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसके पीछे आप और भागोगे और आपको बुरा लगेगा वो चीज़ नहीं चाहिए. शायद अगर आपको तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं चाहिए और अभी चाहिए. सो दैट इज़ सोनिया. इस फिल्म के प्रति आप क्यों आकर्षित हुए? स्क्रिप्ट देखकर आपने क्या सोचा? I think from day one as an actor I've always been attracted to scripts, and when I saw this film I felt कि ये स्क्रिप्ट में ऐसी बात है कि बहुत टाइम तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जो यूजुअली फिल्म मेकर्स क्या दिखाते हैं, या तो कोई रियल स्टोरी हो तो बहुत ही ड्रैब, बहुत ही रियल दिखाएंगे, तो एकदम करीबी दिखाएंगे, एकदम इतना रियल होगा कि आप एकदम मायूस हो जाते हैं कि ओह ये क्या है. और कमर्शलिज्म पे जाएंगे तो इतना ओवर द टॉप कमर्शियल हो जाता है दैट यू से इसमें रियलिटी कहाँ है. सो दिस इज़ अ फिल्म विच इज़ वेरी रियल इन टर्म्स ऑफ इट हैज़ इट्स कमर्शियल मोमेंट्स एंड दिस एंड दैट एंड इट हैज़ इट्स रियलिटी, बट इट इज़ सिवियरली रियल. लाइक कोई ऐसे मोमेंट पे आप नहीं सोच सकते कि ये हिंदी फिल्म है इसलिए. इंस्टेड जब आप ये फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ओह ये कैरेक्टर हमने कहीं देखा है, वो कैरेक्टर हमने कहीं देखा है, ऐसे लोगों के साथ होता है. ये ऐसी इंस्टेंसेस है इस फिल्म में जो कि आप बहुत कम पर्दे पे देखते हैं, पर इस बारी आप इस फिल्म में देखेंगे. अनिल कपूर और ग्रेसी के बारे में. Anil Kapoor is Anil Kapoor. It was great working with him. I think he's one actor जो कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने को-स्टार्स के बारे में भी सोचते हैं, वो पूरी फिल्म के बारे में सोचते हैं. वो एक सीन कर रहे होंगे शायद, तो उधर एक जूनियर आर्टिस्ट का रिएक्शन भी ही वांट्स कि वो रिएक्शन अच्छा होना चाहिए. So he's extremely professional. He's very very sweet. I'm really glad I did this film with him. And Gracie, I had done a world tour with. हमने एक world tour किया था after लगान and दिल चाहता है. So I had got to work with her before, and she's a very sweet girl. वो मेरी तरह ज़्यादा बातें नहीं करती है, कम बात करती है, and she is very very good in the film. जब मैंने फिल्म देखी, so I said wow, Gracie is so good in the film. तो आप देखना, because as it is आपने लगान देखी है, तो you all know she's a great performer. So it was very nice working with them. The music of the film, the music is very very nice. It pertains to the film. ऐसा कोई गाना नहीं डाला है इस पिक्चर में कि मासी नंबर चाहिए, एक आइटम गाना चाहिए तो ये डाल दो या वैसा चाहिए. सब गानों में स्टोरी जारी है. गानों में द लाइन्स, द लिरिक्स, सोनिया का गाना है जो वो गाती है, शी गोज़ मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे. So it's like, you know, that's Sonia Kapoor. So that's when she sings, you don't, I mean जब वो गाना आता है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं बाहर से कोई गाना आ गया है. सेम वे मुझे my personal favorite which I like is the एक जुगलबंदी का म्यूज़िक है. I love that. I think it's so soulful and so beautiful. Then Anil and Gracie का एक गाना है मेरी ज़िंदगी में आए, that song is also very nice. The music ऐसा म्यूज़िक है कि आप अगर एक बारी सुनो तो it grows on you, और ऐसा नहीं कि बार बार सुनो तो you say put that music off right now. It's very soothing to the ears and it's very very nice. एक्सपेक्टेशंस तो झूठ बोलूँगी अगर बोलूँगी कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. हर एक्टर को अपनी फिल्म से एक्सपेक्टेशंस होती है कि इतनी मेहनत की है हमने, इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं. इस पिक्चर के लिए मैं 3 बजे सुबह उठती थी, और मैं ही नहीं पूरा क्रू 3 बजे उठता था, क्योंकि हमारे कैमरामैन ने कहा था कि उनको अर्ली मॉर्निंग लाइट चाहिए. तो जब इतनी मेहनत जाती है, आप इतने दिनों से काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जब आपकी फ़िल्म बाहर आए लोग उसको अप्रिशिएट करें. क्योंकि ऐसा होता है कि 3 घंटे में ऑडियंस उठ के बोल देती है, किसी को पता नहीं होता है कि उसमें कितनी मेहनत जाती है. सो आई एक्सपेक्टेड टू डू वेल, एंड आई थिंक दिस फिल्म विल डू वेल, बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जब लोग देखेंगे दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट. ये मेरा एब्सोल्यूट दावा है. मुझे पिक्चर की कहानी पसंद आई.
पिक्चर का सारा सेटअप अच्छा है। मेरे दोस्त दिनेश गांधी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और मेरी दोस्त हनी ईरानी जो फिल्म की डायरेक्टर हैं, वो मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों में से हैं। फिर इस फिल्म ने मुझे मौका दिया एक बार फिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का, और जितने दूसरे कलाकार हैं इस फिल्म में मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था, जैसे कि अनिल कपूर जी, प्रीति जिंटा, ग्रेसी सिंह। तो एक मौका मिला एक नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम करने का, इसलिए मैंने इस फिल्म में काम किया। नई पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या चेंजेस, तब्दीलियाँ देखते हैं आप अपने ज़माने के कलाकारों में और जो अभी नए लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं? आजकल के कलाकार बहुत प्रोफेशनल हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे ज़माने में नहीं थे, बट आजकल के जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोडक्शन है, एक स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, उनके बनाने का अंदाज़ अलग है। और मुझे इस फिल्म में काम करके एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा मिला कि एक फ़िल्म किस तरह आज के ज़माने में बनानी चाहिए। सारी फिल्म हमने 4 महीने में कंप्लीट कर दी है। पिक्चर का बड़ा बजट है, बड़े प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं, बट एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से सारी फिल्म बनाई गई है। इसकी क्या वजह रही कि आजकल के बैनर्स काफ़ी अक्सर फिल्म देखने को नहीं मिली, कोई नहीं बना रहे हैं। आजकल का जैसे माहौल चल रहा है तो अपने आप को थोड़ा होल्ड पे रखा है पीछे हमने, और 2-3 महीने में फिल्म फ्लोर पे चले जाएगी। क्या किरदार के बारे में? हाँ जी, इस फिल्म के किरदार के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैं ही एक कलाकार हूँ इस फिल्म में जो डॉक्टर नहीं है, बाकी सब डॉक्टर हैं।